Dear students, today we are going to discuss methods of increasing and decreasing friction. It is well known fact to you all that, or we have already studied that friction is necessary evil. It means that in some situations in our daily life, there is necessity of friction, means it is necessary, but in some cases it is not necessary. It is an evil. It behaves like an evil, means problem creator. It means that in some cases where there is necessity of the friction, in that very case it is desirable, but in some cases it is not desirable. कुछ केसेस में ज़रूरत है, कुछ केसेस में ज़रूरत नहीं है. लेट अस सपोज ज़रूरत है बट देयर इज नो फ्रिक्शन, देन क्वेश्चन इज दिस, हाउ वी कैन इंक्रीज फ्रिक्शन. एंड लेट अस सपोज देयर इज फ्रिक्शन बट देयर इज नो नीड ऑफ फ्रिक्शन, question is this, how we can decrease friction. That's why today's topic is methods of increasing and decreasing friction. First of all, we will discuss methods of increasing friction. How means? It means that there is need of more friction but available friction is less. हमको ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए लेकिन है कम. Then question is this, it means that there is need to increase friction. फ्रिक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है. क्वेश्चन इज दिस कि हाउ वी कैन इंक्रीज, हम लोग फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. नाउ कम ओवर डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट कंडीशंस वन बाय वन, or you can say different examples one by one. First one is vehicles have treats on them, right? Question is this कि what is the meaning of treats. तो आप देखते होंगे कि टायर्स ऑफ व्हीकल्स हैव ट्रीट्स ऑन देम. आप देखते होंगे कि व्हीकल्स के जो चक्के होते हैं, व्हील्स होते हैं, उसमें कटे कटे होते हैं. दैट वेरी कटा कटा is known as treats. Then question is this कि what is the need of that. Then simply we used to say when there will be no treats, then surface will be smooth, and when surface will be smooth, then your wheel may skid, may slip, right? So we make treats, you can say cut over the wheels to improve their grip over the road, right? रोड पर जो है जब ऐसा कटा रहेगा तो रोड पर ग्रिप अधिक बनाएगा. एंड मीनिंग ऑफ ग्रिप अधिक बनाएगा इज इट मीन दैट देयर विल बी इंटरलॉकिंग बिटवीन रफनेसेस विल बी मोर, देयर विल बी इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़. जो कटिंग बना हुआ है इसका मतलब क्या होगा, अप्स एंड डाउन्स जो बने हुए हैं, माउंटेन एंड वैलीज जो बने हुए हैं, उसका दोनों सरफेस मीन्स रोड और टायर के बीच में ग्रिप जो होगा दैट विल बिकम स्ट्रॉन्ग. मीन्स अप्स एंड डाउन, माउंटेन एंड वैलीज जो हैं उसके जो हैं यू कैन से व्हाट यू विल से इंटरलॉकिंग जो बनेंगे दैट विल बी मोर. And when that will increase, it means that friction will increase, and when friction will increase, then there is no chances of skidding and slipping, right? That's why tires of vehicles have treats on them. Number 2, sole of shoes is grooved. Question is this कि what is the meaning of groove. ग्रूव का होता है, जूते देखेंगे आप जो है उसमें भी तरह तरह के कटिंग होते हैं, और नहीं तो गोल गोल जैसे स्पॉट्स होते हैं निकले हुए उभरे हुए. दैट वेरी थिंग इज नोन एज ग्रूव. क्वेश्चन इज दिस कि वाई सोल्स ऑफ शूज आर ग्रूव्ड. जो है ग्रूविंग किए जाते हैं जूते के सोल में, क्यों? अगर ग्रूविंग नहीं किए जाएंगे देन सरफेस ऑफ द सोल ऑफ शूज विल बी प्लेन, विल बी स्मूथ, so there will be chances of slipping. But when that will be grooved, then it means that roughness will increase, it means that irregularities will increase, it means that ups and downs will increase, and due to this very ups and down
interlocking between irregularities of road and sole of shoes will increase, and due to which friction will increase. So there will be again no chances of slipping. Right? Now come over point 3. We used to say a sportsman and players use special types of shoes. ये जो स्पोर्ट्समैन होते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ शूज यूज करते हैं हमारे और आपसे थोड़ा सा अलग, एंड दैट वेरी शूज इज नोन एज स्पोर्ट्स शूज। उसमें क्या होता है कि स्पोर्ट्स शूज हैव स्पाइक्स ऑन देयर सोल, उसके सोल में जो होते हैं ना उभरे उभरे कील की तरह होते हैं, बड़े लंबे लंबे न्यूक्लियर टाइप के। राइट, क्वेश्चन इज दिस की व्हाट इज द यूज ऑफ दैट। तो सेम जो ग्रूव वाली बात है सेम इज हेयर बट इन लार्ज अमाउंट। ये जो ग्रूविंग होगा दैट विल मेक बेटर ग्रिप विद ग्राउंड, and due to which there will be no chances of slipping. So interlocking between irregularities will be more, which will provide more friction, and there will be no chances of slipping during running. One more point is here, gymnastics जो करते हैं they apply chalk powder on their hands. जिम्नास्ट जो हैं वो क्या करते हैं अपने हाथ में चॉक पाउडर लगा लेते हैं टू इंक्रीज फ्रिक्शन। नहीं लगाएंगे तो उनका हाथ स्लिप करने का चांस है। वी यूज टू राइट टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन हैंड्स एंड अनइवन बार्स, अ जिम्नास्ट यूज चॉक पाउडर टू इंक्रीज फ्रिक्शन सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी स्लिपिंग। कबड्डी प्लेयर भी जो होते हैं अपने हाथ में क्या कर लेते हैं मीटी लगा लेते हैं, जिससे क्या हो उसके हाथ में स्मूथनेस खत्म हो जाए। अदरवाइज स्मूथनेस रहेगा तो अपोजिट टीम को प्लेयर को पकड़ेंगे तो हाथ स्लिप करने का चांसेस होता है, क्योंकि अपोजिट टीम वाले जो हैं ऑयल लगाए रखते हैं स्मूथ मटेरियल, और आपका भी अगर हाथ स्मूथ है देन स्लिपिंग विल बी मोर। वो आप तो उसका हाथ पकड़ेंगे वो खींच कर भाग ले जाएगा। सो इंक्रीज फ्रिक्शन, कबड्डी प्लेयर्स यूज व्हाट यू विल से सॉइल, मिट्टी हाथ में लेकर के रगड़ लेता है फॉर मेकिंग बेटर ग्रिप ओवर द हैंड ऑफ द प्लेयर ऑफ ओपोनेंट टीम, अपोजिट टीम। राइट, दीज आर द डिफरेंट मेथड्स बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन इंक्रीज फ्रिक्शन। राइट, now come over how we can decrease friction. Is what are the different methods of decreasing friction? It means that in some cases available friction is more, but there is the need to decrease friction, means there is no need of friction but available friction is more, then in that very case there is need to decrease friction. Question is this, how we can decrease friction? फ्रिक्शन हम लोग कैसे घटा सकते हैं? we decrease friction. Question is this कि how we can decrease friction? Then we used to say we decrease roughness of the surface to increase smoothness. हम लोग रफनेस को डिक्रीज करते हैं स्मूथनेस को बढ़ाने के लिए। राइट, वाई? बिकॉज देयर इज नीड टू डिक्रीज फ्रिक्शन। इसका मतलब अगर फ्रिक्शन घटाना हो इसका मतलब रफनेस घटाइए, बिकॉज रफनेस फ्रिक्शन का कारण है रफनेस है, तो जब फ्रिक्शन घटाना हो तो रफनेस घटाइए, एंड डिक्रीज ऑफ रफनेस मीन्स डिक्रीज ऑफ स्मूथनेस। राइट, क्वेश्चन इज दिस, व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन डिक्रीज फ्रिक्शन? फर्स्ट मेथड इज पॉलिशिंग। पॉलिश करके हम लोग जो है ये कर सकते हैं। कैसे? देन वी यूज टू से टू डिक्रीज रफनेस, पॉलिशिंग इज डन। पॉलिशिंग किया जाता है कैसे? तो देखते होंगे निशान, पॉलिशिंग किया जाता है मीन्स स्मूथनेस बढ़ाया जाता है। कैसे? तो वन एग्जांपल आई एम गिविंग यू, बाय यूजिंग सैंड पेपर। हम लोग क्या करते हैं, वुडन मटेरियल है उसको रब करते हैं। देखेंगे शुरू में खुरदरा लगेगा, बट आफ्टर यूजिंग व्हाट यू विल से सैंड पेपर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और बाय रबिंग सैंड पेपर ओवर द वुडन मटेरियल इट बिकम्स स्मूथ, मीन्स वी हैव
we have done polishing. Number 2, lubrication. By using process of lubrication we can decrease friction. Then question is this, what do you mean by lubrication? Then we used to say it is process of putting smooth substances over surface to improve the smoothness is known as lubrication. किसी भी सब्सटेंस पर जो हम लोग कुछ स्मूथ मटेरियल जो है चिकने मटेरियल डाल दें उसके स्मूथनेस को बढ़ाने के लिए दिस वेरी प्रोसेस ऑफ पुटिंग स्मूथ मटेरियल्स ओवर सरफेस टू इंक्रीज स्मूथनेस is known as lubrication, right? There are many types of lubricant, and the material which is used to increase the smoothness are known as lubricants, right? Then question is this, what are the different examples of lubricants? We used to say lubricants are available in different states, in all states, solid, liquid as well as gas. First come over solid lubricants. One example is talcum powder, जो हम लोग पाउडर यूज करते हैं अपने चेहरे पर लगाने के लिए, दैट वन, राइट? आपने देखा होगा वी यूज़ पाउडर इन द गेम ऑफ कैरम बोर्ड. वाई? क्योंकि कैरम बोर्ड पर जब हम लोग अपने स्ट्राइकर से हिट करते हैं देन ड्यू टू वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन और ड्यू टू यू कैन से स्मूथनेस over the surface of blackboard as well as striker, our striker doesn't move large distance even after a very hard hit, right? It means that friction is very very large. There is need to decrease friction. At that very time we use talcum powder. We put talcum powder over the surface of the body of the carom board, and after that when we hit our carom board, when we hit our striker over the carom board, it moves easily, right? Second one is your liquid lubricant. An example is oil. Oil, diesel, petrol means oily material, right? And where we use it? Then we used to say we use it over moving parts of a machine. देखते होंगे आप लोग साइकिल में जो हैं तेल डालते हैं, कहते हैं साइकिल का तेल डाल दीजिए तो जरा सा. कभी कभी उसमें हम लोग पेट्रोल भी डाल देते हैं क्योंकि दैट इज आल्सो लस्ट्रस मटेरियल, और नॉट? वाई? क्यों डालते हैं? टू डिक्रीज फ्रिक्शन, राइट? थर्ड एग्जाम्पल इज सेमी लिक्विड. क्वेश्चन इज दिस की सेमी लिक्विड lubricants. क्वेश्चन इज दिस की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी लिक्विड lubricant? एंड वी यूज टू से दैट वेरी लिक्विड विच इज अवेलेबल इन नॉट इन कंप्लीट लिक्विड बट नॉट आल्सो इन कंप्लीट सॉलिड. तो यह जो सेमी लिक्विड होता है ना ही प्योर सॉलिड होता है और ना ही प्योर लिक्विड होता है. लिक्विड वाला भी गुण होता है और सॉलिड वाला भी गुण होता है. एंड बेस्ट एग्जांपल इज ग्रीस. हम लोग व्हीकल्स में लगाते हैं. वाई? टू डिक्रीज फ्रिक्शन, रगड़ को कम करने के लिए, घिसना को कम करने के लिए, रबिंग को कम करने के लिए. और इससे क्या होता है, मेरे मूविंग पार्ट्स जो मशीन होते हैं उसका टूट फूट नहीं होता है, घिसता नहीं है. दैट्स वाई वी यूज टू से अ ग्रीस इज अ सेमी लिक्विड lubricant which is used over moving parts of a machine to reduce friction and to reduce wear and tear, right? Next one, come over gaseous lubricant. See, gaseous lubricant, and best example is air. Question is this कि जो है लुब्रिकेंट जो है आपका वह भी तो था जो है ऑयली वाला, जो ऑयल भी था. ऑयल और एयर में क्या अंतर है? तो लिसन, ऑयल भी जो है आपका फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा था, यह भी रिड्यूस करता है, लेकिन यह जो है ऑयल वाले में डर्ट एंड डस्ट पड़ने के चांसेस होते हैं, बट इन इट देयर इज नो चांसेस ऑफ कमिंग ओवर डस्ट एंड डर्ट ओवर द मूविंग पार्ट. दैट्स व्हाई वी यूज टू से this very air is used as lubricant to prevent dust and dirt from collecting on the moving parts of a machine, right?
Next method to reduce friction is ball bearing. आप कहते होंगे मेरे साइकिल का बॉल बियरिंग खराब हो गया है, जो जिसको आप कह रहे हैं वही बॉल बियरिंग. एंड बाय यूजिंग दिस वेरी बॉल बियरिंग friction reduces means by applying very small amount of pedaling our cycle, our bicycle attains large amount of speed, right? It means that ball bearings are used to reduce friction, means by using ball bearing we can decrease friction. कहाँ कहाँ यूज होता है? देन इन एक्सल ऑफ व्हीकल, साइकिल के चक्के में लगा होता है, देखते होंगे. यस, वन मोर इन डायनमोज, डायनमो भी फ्रीली मूव करे इसके लिए वहाँ भी बॉल बियरिंग यूज़ किया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज इन सैफ्ट ऑफ मोटर्स, मोटर का जो सैफ्ट होता है, एक्सल होता है, उसमें भी बॉल बियरिंग यूज होता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन, राइट? इट मीन दैट हाउ वी कैन इंक्रीज फ्रिक्शन, हाउ वी कैन डिक्रीज फ्रिक्शन, वी हैव डिस्कस्ड, राइट? Once again I am coming over the topic one by one. What are the different methods of increasing friction? Then first method is, you can say कि vehicles have treads on them. Second one, sole of shoes is grooved. Third one, a sportsman and players use a special type of shoes to increase friction. And one more is, gymnasts apply chalk powder on their hand to increase friction. And then what are the different methods to decrease friction? Then we can say first method is polishing, second method is by using different types of lubricants, and third method is by using ball bearing we can decrease friction, right? Okay.